थाणा सदर कपूरथला ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਬਜਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਜਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਜੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਨ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਜਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। 1-2 ਵਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। और जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद है। देखो, जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए और भी लोगों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और जो FIR दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब अंडर एज थी तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने, उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाती थी तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा, एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, हमारा काम प्रेयर करना है। और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है और वो हमारे मतलब वो फैमिली, वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ। हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो, लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा भड़ास उस पर निकालते। आपके दुकान पे कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा? मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। सर, जो आप कह रहे हो कि आप पैसे की मांग की गई है, वो कुछ किया है? वो कितने पैसे की मांग की गई थी और किसने की है? मतलब नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। कितने? अच्छा, प्रधान इनके साथ कितने पैसे मांगे थे उन्होंने? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ। मैं तो उस दिन से अब मैंने अच्छा, आपने एक FIR का जिक्र किया है जिसमें विजय है, शायद एक है ना आरोपी, वो कहते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जो उसने जमानत करवा ली वो पेश हुआ था, शामिल तफ्तीश हुआ था। क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी है या नहीं? उसमें हाँ, तो FIR हमारे प्रधान जी ने कराई है। हाँ जी, अवतार जी ने कराई है ना। तो लेकिन अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि उसने क्या कराया। मैं तो उसको खुद कह रहा हूँ, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। अभी वही हमें जानकारी मिली थी, अभी बाहर ही पता चला था कि उसने जमानत करवा ली, एक ने, चंदन ने नहीं। हाँ, तो भगोड़ा है ना। तो अभी मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि ये 2.5 महीने से ये FIR MS DSP के पास बंदे भेज रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं पकड़ रहा। बाद में पता लगता है कि अब इसका साला इसको फोन करता है या कौन करता है मुझे नहीं पता भाई किसके साथ।
लेकिन पर अब ये देखो कि भाई अब ये जो चीजें हैं, मैं 2.5 महीने से मांग कर रहा हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहा। अब इन्होंने देखा कि हमारे पे पर्चा कर दिया, तो आप खुद समझदार हो कि ये देखो ना ये क्यों बैठ गया यहाँ पे, इसके अब क्या खुंदक निकाल रहा आपको है। क्या लगता है ऐसा क्यों हो प्रॉप रहा है? करता या है एक कि- महिला ऐसे गंभीर आरोप लगाएगी, अब उसने ये भी आरोप लगा दिया कि कहती मैं प्रेग्नेंट थी तब भी यहाँ पर रहने आई क्योंकि एमपी में उसकी शादी हुई। अब कह रही 20 दिन की बच्ची है, लेकिन मेरे को फिर भी डर डर के रहना पड़ रहा है। मतलब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देखो खुद आरोप लगा रही है। देखो खुली में भाई साहब, जो शर्मसार इंसान होता ना वो ऐसे नहीं आता, जिसके जिसके अब मैं किसी के बारे में कहूँगा नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में क्या करना है, लेकिन मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो है सब प्रोपगंडा रचा जा रहा है। आप डीएसपी का कह रहे हैं, डीएसपी का नाम क्या है जो आप कह रहे हैं कि जिसके कहने पे डीएसपी का क्या इसका साला नाम, जिसका आप दूसरी कह रहे हो चर्चा कि करता है। मैं लांबड़े की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता लगा था वो कहीं विजय के साथ मिला हुआ है। अच्छा DSP बजिंदर जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए गए, लड़की द्वारा कहा गया कि जो चर्च में टेस्टमनी होती है वो बिल्कुल फेक होती लाइट है, ऑन कर। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या होती है? टेस्टमनी जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है, सबको स्क्रिप्टेड या- किया जाता है। बेटे, दो देखो, व्यक्ति हैं, देखो, नाम उन्होंने लिया, देखो। मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। नाम लिया उन्होंने, नाम लेके बताया एक लड़की। देखो मैं यहाँ ना उस बात के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए आया हूँ आपके पास। उन्होंने दूसरे- सवाल सुनो उठाया। सवाल उसको सुनो, सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन ये आगे से ध्यान रखो, आपने जिस बात के लिए आया उसी पे टॉपिक पे रहो। वही topic है। सुनो Press सुनो conference सुनो, में- वो जो मर्जी उसने लिखा हो, लेकिन पर देखो अभी मैं बता देता हूँ, सबकी आस्था होती है बेटे, सबकी आस्था है। कोई भी कहीं भी जाता है वो विश्वास जो चंगा हो जाता है वो ठीक कहेगा, जो चंगा नहीं होगा वो बाद में गालियां देगा। तो ये फर्क है। मतलब चुम कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि इसका साला डीएसपी का साला दूसरे चर्च में जाता है और इसने उसको बता दिया, अब तक नहीं पकड़ा। मेरी तो दरखास्त 2.5 महीने की पहले एफआईआर नंबर तूने भगोड़ा कर रखा है, घूम रहा है वो, और तूने उसको पकड़ा नहीं, तूने उसको बता दिया। एफआईआर हमने लामड़े थाड़े में कराई है और तू उसको पकड़ नहीं रहा, और ये बंदा एफआईआर करा के इसके साथ बैठ के स्कैंडल कर रहा है इस लड़की के साथ। ये देखो ये बैठा स्कैंडल कर रहा है, तेरी एफआईआर तो मेरे पास है, तू भगोड़ा है। और ये देखो अगर हमने लड़ना हो या कुछ करना हो समाज में तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी। मैंने कहा आप देखो शोभा यात्रा पर, जब मैं शोभा यात्रा निकालता हूँ, क्रिसमस करता हूँ, 10 लाख लोग आते हैं यहाँ पर, 3 घंटे लगते हैं लोगों को सिर्फ पैदल चलने में। 20 लाख लोग थे मेरी मीटिंग में झारखंड के अंदर। मैं जहाँ मीटिंग करता हूँ लाखों लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते लोग यहाँ पर अगर मैं ये काम करने लग जाऊँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में चक्का जाम कर दूँ। लेकिन मैं प्रशासन से विनती करता हूँ इस बात के लिए, सीएम साहब से, कि भाई जब इलेक्शन होता है वोट लेने आए तो तब तो ठीक है, लेकिन अभी ये इतने बड़े बड़े पास्टरों पे भी तुम पर्चा डाल रहे हो। अभी जो है वहां देखो ना, वो एक पास्टर पे उस पे भी पर्चा डाल दिया गैंगरेप का, 5 पास्टरों पे डाल दिया इकट्ठा। चाहे कोई हो, चाहे इनकी आपस में लड़ाई हो, चाहे कुछ हो, लेकिन ये थोड़ी है कि हम आपस में जो है ऐसे काम करने लगेंगे। मैं तो मुझे तो शर्म आती है कि बिशप साहब इस पे कहते हुए कि ये जो है अपने आप को कहता है, कभी कहता है मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ तेरा, कभी कहता है मैं बाप हूँ तेरा। लेकिन अगर तेरा सगा बेटा है उस पर पर्चा करा के दिखाना लड़की का, उस पे कर ब्लेम लगा जाके। और आज अब कहेगा कि तुझे क्यों चीड़ हो रही है? तुझे उस दिन चीड़ हुई क्योंकि तूने जो है बेखड़ंत 5 साल से तेरी वीडियो देख रहा हूँ, 5 साल से तू बोली जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा भी बोला नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। पहला था तो पर्चे करा लिए थे यहाँ पर पंजाब में आके, लेकिन अब मैं बोला नहीं हूँ। बाइबल बोलती है भोला दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है, तो मेरे को भी चतुराई आती है। अब अगर जैसे मेरे को किसी ने सही सलाह दी थी, कह रहा पागल जब सांड हो जाता है ना उसको डंडा मारा जाता है, पुचकारा नहीं जाता। तो ये पागल हो गया, इसको पुचकारने में मेरे को कोई फायदा नहीं है। मतलब कि मेरे अगर जैसी चोट मारेगा, बाइबल में लिखा परमेश्वर का काम परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो। तो मैं सरकार को देने आया हूँ, परमेश्वर का काम मैं संडे को करता ही हूँ, लेकिन मैं सरकार को देने आया हूँ। मैं बताने के लिए आया हूँ कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम क्या ऐसी छोटी छोटी गंदी गंदी बातें ब्लेम लगा रहा है। लेकिन और वो तो ऊपर वाला देख रहा है कि न्याय करेगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के जरिए कि आपके चैनल को भी परमेश्वर आशीष दे। देखो मेरी अगर कहीं भी कोई कह रहा हो, मैं डेफिनेशन का चैनल वालों पे दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, और चाहे कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, सब चैनल पे केस डालूंगा। डेफिनेशन का एक भी साबित करके दिखा दे। जो कहता नशे करता है, मर्डर किया हुआ, मैं 5 लाख रुपए का केस डालूंगा, 50 लाख का डालूंगा, कहीं से भी डालूंगा। मेरे खिलाफ दिल्ली में भी न्यूज चलाई उन्होंने, मैंने उनके ऊपर भी, मैंने सिर्फ जो है एक बंदा मेरे साथ था, पास्टर जी के कहने पे मैंने नहीं किया। लेकिन अगर जो कोई कर रहा है, अगर
बेबड़ी कहानियां बना रहा है, फलाना फलाना ये करते हैं वो करते हैं, कत चिट्टा बेचते हैं। अरे हम तो लोगों को नशे से आजाद कराते हैं, हमारे खिलाफ बोल रहा है। अगर जो है अभी मैं उन देखो न्यूज वाले से हमारी कोई खुंदक थोड़ी है, वो भी हमारे भाई बहन है, वो हम भी ऐसे ही दुखी लोग थे। हम प्रार्थना करने आए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया तो आज हम प्रभु में आ गए। लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी ना बनाओ इसको, ये अभी इलेक्शन आने वाले हैं, स्ट्रेटेजी ना बनाओ। अब पूछते हैं तो बोलते हैं कि जी हमारे पे तो कोर्ट से उन्होंने पार्टी बना लिया, हमें एसएचओ को और डीएसपी को पार्टी बना के, उनका भी कसूर नहीं है, उनको पार्टी बना लिया, वो डर गए बेचारे, उन पर्चा कर दिया। वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास जो भी होगा तो हमें कहते हैं भी अपनी वो दे दो। तो देखो अब मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं अगर होता तो भाग जाता, चोर होता मैं आपके सामने क्यों बुलाया आपको, मैंने इसलिए बुलाया, मेरे पास लाखों लोग, आप यहीं से चेक कर लेना, जब आप मेरी वीडियो डालोगे कितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे। आपको मैं यहीं से बता रहा हूँ, लोग प्यार करते हैं नहीं करते, लेकिन हर तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर जो कोई कुछ भी कह रहा है तो मैं तो इसलिए आया हूँ कि भाई मेरे भी बच्चे हैं यार, ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो। लेकिन अगर जो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास तो ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बुला लो थाने में, मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं तो बाहर बैठूंगा। आप कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। सर अभी आपने प्रूफ की बात की, अभी जो इन्होंने प्रेस वार्ता की है उसमें उन्होंने बोला है, कुछ चैट का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखो आजकल नकलियां चैट बनती हैं, चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ, नकली चैट, एप्पल के फोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी।